بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ایگز یعنی انڈے انسانی صحت کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں؟ اور آپ انہیں اپنی ڈائٹ میں شامل کر کے امپورٹنٹ بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایگز کے کچھ انٹرسٹنگ فائدے۔ پیارے بچوں، انڈوں میں وہ تمام امینو ایسڈز موجود ہوتے ہیں جو انسانی جسم کی نشو و نما اور گروتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ انڈے کھانے سے میموری اسٹرانگ ہوتی ہے۔ انڈا دل کی بیماریوں اور فالج سے بچا سکتا ہے۔ انڈوں کی زردی میں موجود کیروٹین آنکھوں کے موتیا سے بچاتا ہے۔ انڈوں سے ہمارے مسلز اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس لیے انڈے کھائیے اور تندرست و توانا رہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبرنامے کو اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، ہیلتھ ٹیسٹ میں ہوں گی صحت سے جڑی معلومات، جانیں گے موسم کا حال ویدر ڈیسک میں، ویڈیو ریویو میں دیکھیں گے ببلو کی وائرل ویڈیو، اسپیشل رپورٹ میں ایک پیاری سی ایپ کا انٹروڈکشن، ایکٹیویٹی ڈیسک مدنی مذاکرے کی اپڈیٹ، عرس مبارک، دیکھیں گے شرارت بھرے پیکج کی شرارتیں اور سیکھیں گے ننھے استاد سے اچھی اچھی باتیں، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب ہم لے کر چلتے ہیں ہیلتھ ڈیسک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ فہد بھائی ہمیں کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، میں ہوں فہد اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں صحت کی خبریں۔ بچوں کی اچھی صحت مند زندگی کے لیے جسمانی اور ذہنی گروتھ بہت ضروری ہے۔ ہمارے جسم کی یہ ضرورت کھانے پینے سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سے موسم میں کون سا فوڈ کھایا جا سکتا ہے۔ آج کل سمر سیزن چل رہا ہے، تو اسی مناسبت سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کون سا سمر فوڈ ہم بچوں کو کھانا چاہیے۔ چلے پھر جانتے ہیں کہ ایسے کون سے فوڈس ہیں جو ہماری باڈی کو ٹھنڈا رکھیں گے۔ سب سے پہلے فوڈ جو ہمیں لازماً استعمال کرنا چاہیے وہ ہے تربوز یعنی واٹر میلن۔ بچوں، تربوز میں بہترین پانی کا خزانہ مطلب تقریباً 92% پانی ہوتا ہے جو ہمیں گرمی میں ویکنیس ہونے نہیں دیتا۔ کوکونٹ واٹر یعنی ناریل کا پانی بھی گرمی کے موسم میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ ہم بچوں کے جسم میں تیزی سے ہونے والی پانی اور منرلز کی کمی کو ناریل کے پانی میں موجود الیکٹرولائٹس پورا کرتے ہیں۔ اس میں ایسے اینٹی آکسیڈینٹس ہوتے ہیں جو تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں اور بیماری پھیلانے والے جراثیم سے مقابلہ کرتے ہیں۔ بچوں، ناریل پانی کی طرح ایک اور قدرتی انرجی ڈرنک ہے لیمو پانی۔ یہ وٹامنز، پوٹیشیم، منرلز اور اینٹی آکسیڈینٹس کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ لیمو پانی میں آئرن موجود ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں خون کی کمی کو نہیں ہونے دیتا۔ دہی ایک صحت مند اور کریمی فوڈ ہے۔ اس میں پروٹین، کیلشیم اور پروبایوٹکس ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر آپ ککمبر یعنی کھیرے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو گرمیوں میں پیاس کی شدت میں کمی لاتا ہے۔ بچوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ کھیرے میں تقریباً 96% پانی موجود ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اس میں فائبر ہوتا ہے جو کانسٹیپیشن کو ختم کرتا ہے۔ بچوں، خربوزے میں موجود بیٹا کیروٹین ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ خربوزے میں تقریباً 90% پانی بھی موجود ہوتا ہے جو ڈائجسٹو اور امیون سسٹم کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تمام سمر فوڈ ہمارے جسم میں ہونے والی گرمی کو کم کر کے ہمارے جسم کا ٹیمپریچر کم کرتے ہیں تاکہ ہمیں انرجی بھی ملتی رہے اور تھکاوٹ کا احساس بھی نہ ہو۔ جزاک اللہ خیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہیلتھ ڈیسک کے ساتھ بڑھتے ہیں ویدر ڈیسک کی جانب اور جانتے ہیں موسم کا حال۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، پیارے بچوں، بارش کا موسم ہم سبھی کو پسند ہے۔ ہلکی اور تیز بوندیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اور انہی کے ساتھ کبھی تیز تو کبھی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے اور اسی دوران بادل بھی خوب زور سے گرج رہے ہوتے ہیں۔ انہی بادلوں کے گرجنے کے دوران ہمیں کچھ عجیب
तेज गड़गड़ाहट की जैसी आवाजें भी आती हैं, जिन्हें पहले तो हम समझते थे कि शायद किसी वजह से ऐसी तेज और अजीब बल्कि खौफनाक सी आवाज आती है, पर आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे दरअसल क्या वजह है। प्यारे बच्चों, बारिश के दौरान आपने आसमान पर बिजली चमकती हुई देखी होगी या उसके बारे में अपने बड़ों से या अपने दोस्तों से जरूर सुना होगा। जी हाँ, आसमानी बिजली चमकती है और वो इस वजह से क्योंकि ये एक किस्म की इलेक्ट्रिकल चार्ज या करंट है जो बादलों से बादलों या फिर बादलों से जमीन तक आ सकता है। प्यारे बच्चों, आपके जहनों में यकीनन ये सवाल जरूर आया होगा कि ये इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है और भला क्लाउड्स में इसका क्या काम। तो हम आपके लिए मजीद आसानी करते हुए बताते हैं कि क्लाउड्स में बारिश बरसाने के लिए जो वेपर्स यानी कतरे जमा हुए होते हैं वो एक मुकर्रर वक्त के बाद फ्रोजन रेन ड्रॉप्स यानी जमे हुए बारिश के कतरों में बदल जाते हैं और यही ड्रॉप्स गरज चमक के साथ जब एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल चार्ज बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बादल के लोअर पोर्शन में जबकि पॉजिटिव चार्ज बादल के अपर पोर्शन में जमा होते हैं और यही बिजली की चमक का बायस बन जाते हैं। इस हवाले से रिसर्चर्स का मानना है कि आसमानी बिजली का बारिश के दौरान फिजा और जमीन के दरमियान जनरेट होने वाला हाई वोल्टेज करंट है जो कि तकरीबन 30,000 एम्पियर का होता है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि इससे महफूज कैसे रहा जा सकता है। बारिश के दौरान आसमानी बिजली आसमानों से खुले मैदानों, दरख्तों, पहाड़ों, खेतों, समंदरों, ऊंचे टावरों, बिजली के खंभों पर गिर सकती है, लिहाजा इनसे लाजमी दूर रहिए और एहतियात कीजिए। घर में बिजली से चलने वाले आलात से दूर रहें क्योंकि आसमानी बिजली खंभों पर लगे हुए बिजली के तारों में से भी गुजर सकती है और ये तारें हमारे घरों में भी आ रही होती हैं। अगर आप घर से बाहर है तो ऐसी जगह का इंतखाब करें कि जहां कोई छज्जा या छत नुमा जगह मयसर हो जिसके नीचे आप पनाह ले सकें, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज की मौजूदगी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि मोबाइल फोन के सिग्नल्स। इस दौरान आप मोबाइल फोन का हरगिज इस्तेमाल ना करें। अगर आप सड़क पर हैं और आपके पास छतरी है तो बिजली चमकने के दौरान इसे बंद करके रख लें क्योंकि इसमें मौजूद मेटल भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लोहे के पाइपों से दूर रहें क्योंकि इनमें से भी बिजली का आसानी गुजर मुमकिन हो सकता है। प्यारे बच्चों, जिस वक्त बारिश शुरू हो बेहतर है कि आप और आपके घर के बड़े किसी महफूज जगह पर वक्त गुजारें। बिजली के आलात को हर के साथ ना लगाएं और ना ही नहाने के लिए गली मोहल्ले या छत पे जाएं, बल्कि अपने घर, स्कूल, कॉलेज, मदरसे या फिर घर के बड़े अपने दफातर में रहें ताकि किसी भी नुकसान से न सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी महफूज रहने की तरगीब दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, जबरदस्त। इसके साथ ही बढ़ते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। चलिए देखते हैं कि आज की रिपोर्ट किस टॉपिक पर है। बच्चों का खबरनामा खबरनामा प्यारे बच्चों, दावत इस्लामी के आईटी डिपार्टमेंट ने बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई हैं जिनके बारे में आपको वक्तन फवक्तन बताएंगे। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी जबरदस्त हेल्पफुल नातिया अशआर कलाम पर मबनी एक ऐसी यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन जिसके जरिए आप ना सिर्फ नातिया कलाम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी इस सहूलत से फायदा उठाने की तरगीब दिला सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम नात कलेक्शन है। इसकी मजमूई तौर पर 6 टैब्स हैं। अगर इसके मेन पेज को देखें तो बहुत ही खूबसूरत मेहराब बनी नजर आएगी जिसमें अलामती तौर पर एक माइक भी सिंबल के तौर पर मौजूद है कि जिसको देखते ही आप समझ सकते हैं कि ये अक्सर नात खानों और मनकबत खानों के हाथों में भी कलाम पेश करते वक्त नजर आता है। अब हम इसके दूसरे टैब पर आते हैं तो ये देखें कि हुरूफ तहज्जी के लिहाज से कलाम और मनकबत आपको मिल सकते हैं, यानी कि अगर आप अलिफ मद्दा आ से कोई कलाम पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए अलिफ मद्दा आ से रिलेटेड तमाम कलाम इस फहरिस्त में मौजूद होंगे। इसी तरह बा से रिलेटेड अगर कोई आप कलाम ढूंढना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। इसी तरह हा, जीम, चे, खा, दाल वगैरह वगैरह हुरूफ तहज्जी की तरतीब से आपको नातिया कलाम या मनकबत मिल सकेगी। तीसरे टैब में डाउनलोड का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और पसंदीदा यानी बुकमार्क का भी ऑप्शन दिया गया है कि जिसकी हेल्प से आप अपने पसंदीदा कलाम को मार्क करके रख सकते हैं। चौथे टैब में मुख्तलिफ इस्लामी किताब भी मौजूद हैं जिनमें हदाई की बख्शिश, वसाइल बख्शिश, दीवान सालिक और सामान बख्शिश वगैरह भी मौजूद हैं। पांचवी टैब में सर्च बार का ऑप्शन मौजूद है कि जिसमें जाकर आप नातिया कलाम मनकबत को उसके टाइटल, टेक्स्ट या नाम से सर्च कर सकते हैं। छठी टैब में कंप्लीट
آپشنز موجود ہیں، جیسا کہ اس اپلیکیشن کی سیٹنگ، فیوریٹس، مائی کلیکشن، شیئر، سبمٹ ریویو، مور ایپس، کنیکٹ ود اس موجود ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہے کہ موبائل اپلیکیشن کتنی اچھی ہے، انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہے۔ تو ابھی اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور فائدہ اٹھائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ مدنی چینل کا سب سے اسپیشل اور فیمس پروگرام ہے مدنی مذاکرہ، جس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت خود موجود ہوتے ہیں اور پیارے پیارے مرشد امیر اہل سنت سے کیے جاتے ہیں مختلف سوالات اور امیر اہل سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات۔ مدنی مذاکرے میں بہت سارے لوگ فضائل مدینہ میں حاضر ہو کر مرشد کریم کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ، اور بہت سارے لوگ مدنی چینل کے ذریعے بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری دینی باتیں۔ مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے علم کی باتیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے۔ اور جی ہاں، مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات امیر اہل سنت بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں دیتے ہیں۔ جیسا کہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا، چاند گہن کے وقت کیا کسی چیز کے کاٹنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ امیر اہل سنت نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ اس طرح کی مزید پیاری پیاری باتیں مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے سن سکتے ہیں۔ اور جو بچے مدنی مذاکرے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی ویڈیوز بھیج کر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مدنی مذاکرے کی اپڈیٹ کے بعد اب بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی ڈیسک کی طرف۔ زدان بھائی، ایکٹیویٹی ڈیسک میں کیا ہوگا؟ جی، اس میں ہم اپنے دیکھنے والوں کو کسی ایک پروگرام کی ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں تاکہ جو ہمارے دوست گھروں پہ بیٹھ کے پروگرام دیکھتے ہیں ان سے اگر کوئی ایکٹیویٹی مس ہو گئی ہو تو دیکھ بھی لیں اور اس سے ملنے والے علم دین بھی سیکھ لیں۔ جی زدان بھائی، اور اگر یہ قسط کسی نے دیکھی ہوئی بھی ہوگی تو ان کے لیے ایک طرح سے ریویژن بھی ہو جائے گا اور اس سے اپنے دوستوں میں علم دین کو عام کر سکیں گے۔ جی تو آئیے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑے ہی خوبصورت اور آخری سیگمنٹ میں ہم آ گئے اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں دو کام۔ اب پیارے بچوں، آپ نے واقعہ سننا ہے اور واقعہ سنائیں گے سائم بھائی۔ کیسے سائم بھائی؟ اب واقعہ سنائیں گے، ریڈی ہیں آپ؟ لیکن جو اصل جو دو کام کرنے ہیں وہ ہمارے ایاز بھائی کو کرنے۔ ایاز بھائی، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ وائٹ بورڈ کے اوپر آپ نے قرآن پاک کی سورتوں کے نام لکھنے۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ سائم بھائی واقعہ بھی سنا رہے ہوں گے تو آپ نے واقعہ بھی سننا ہے اور قرآن پاک کی سورتوں کے نام بھی بورڈ پر لکھنے۔ واہ! تو یہ دو ایک وقت میں دو کام کریں گے آپ۔ اچھا جی۔ اور پھر آخری میں جو آپ کا ٹیسٹ آپ کہہ لیں وہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ الکریم میں آپ سے اس واقعے سے ریلیٹڈ کچھ کویشچن بھی کروں گا۔ صحیح۔ تو آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ الکریم، لبیک۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ بورڈ کی جانب تشریف لے جائیں۔ جی ایاز بھائی، آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک فقیر نے اپنی فیملی ممبر کے ساتھ مل کر روزہ رکھا۔ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ افطاری کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے وہ اپنے گھر سے نکلا، لیکن اسے کچھ مل نہ سکا۔ پھر وہ سونے کی مارکیٹ میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی دکان میں قیمتی چمڑے کے ٹکڑے بچھا کر ان پر سونے چاندی کے زیورات ڈال رہا ہے۔ فقیر اس کے پاس گیا اور سلام کر کے کہا، جناب، میں ضرورت مند ہوں، ممکن ہو تو مجھے 1 درہم قرض دے دیجئے، مجھے اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان خریدنا ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ سب سنتے ہی اس سنار دکاندار نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور اس فقیر کو کچھ نہ دیا۔ پیارے بچوں، فقیر کا دل ٹوٹ گیا، اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ واپس آ رہا تھا تو ایک غیر مسلم پڑوسی نے اسے دیکھ لیا، دکان سے نکل کر اس فقیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تو میرے فلاں پڑوسی سنار سے کچھ بات کر رہا تھا۔ فقیر نے بتایا، ہاں، میں نے اس سے 1 درہم مانگا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان خرید سکوں، لیکن اس نے مجھے خالی لوٹا دیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ یہ سن کر غیر مسلم نے فقیر کو 10 درہم دے دیے اور کہا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ فقیر وہاں سے روانہ ہوا تو بڑا خوش تھا۔ پیارے بچوں، جب رات ہوئی تو اس مسلمان سنار نے
ख्वाब देखा कि क़यामत कायम हो चुकी है, प्यास और दूसरी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उसने अचानक एक सफ़ेद मोतियों का महल देखा जिसके दरवाजे याकूत के थे। उसने सर उठाकर कहा, इस महल के मालिक, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, कल शाम तक ये महल तेरा था, लेकिन जब तूने फ़कीर का दिल तोड़ा और उसे कुछ ना दिया तो उस महल से तेरा नाम मिटाकर तेरे गैर मुस्लिम पड़ोसी का नाम लिख दिया गया, जिसने उस फ़कीर की हाजत पूरी की और उसको 10 दिरहम दिए। अब बच्चों, जब सुनार नींद से उठा तो घबराते हुए अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के पास आया और कहने लगा, तुम मेरे पड़ोसी हो, मेरा तुम पर हक है और मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। गैर मुस्लिम ने पूछा, बताओ क्या हाजत है? उसने कहा, कल शाम तुमने जो 10 दिरहम फ़कीर को दिए थे, उनका सवाब 100 दिरहम के बदले मुझे दे दो। तो उसने जवाब दिया, अल्लाह पाक की कसम, मैं 1,00,000 दिनार के बदले भी सवाब ना दूंगा, बल्कि अगर आपने उस महल के दरवाजे में भी दाखिल होने की कोशिश की जो आपने कल रात ख्वाब में देखा था, तो मैं उसकी भी इजाज़त ना दूंगा। मुसलमान सुनार ने पूछा, आपको इस राज की खबर कैसे हुई? तो गैर मुस्लिम ने जवाब दिया, इसकी खबर मुझे उस ज़ात ने दी है जो किसी भी चीज़ को कहती है हो जा तो वो हो जाती है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जी याज भाई, आपका वक्त इख्तिताम को पहुँचा, तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, आपने पूरा बोर्ड ही पुर कर दिया। माशाल्लाह, साइम भाई सुना रहे थे हमें, एक फ़कीर का वाक़या सुना रहे थे। जी हाँ। तो कुछ सवालात करने हैं आपसे। जी करें, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जवाब देने की। माशाल्लाह। पहला सवाल ये है कि फ़कीर ने किसके साथ मिलकर रोज़ा रखा था? अपने घर के अफराद के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। फ़कीर अपने घर से किस वक्त के खाने का बंदोबस्त करने निकला था? इफ्तार के वक्त का। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। खूब तवज्जो रही है, माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, फ़कीर जिस मार्केट में दाखिल हुआ था वो मार्केट कौन सी थी? सोने की, सुनार की नहीं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। गोल्ड की मार्केट थी। अल्लाह पाक आपके हाफ़ज़े में मज़ीद बरकत अता फरमाए। फ़कीर की मदद करने वाला शख्स कौन था? फ़कीर की मदद करने वाला शख्स एक गैर मुस्लिम था। एक गैर मुस्लिम था, नॉन मुस्लिम था। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। कमाल है। सुनार ने ख्वाब में गैर मुस्लिम को मिलने वाला एक इनाम देखा, तो वो क्या था? वो इनाम जो है सफ़ेद मोतियों का महल। सफ़ेद मोतियों का महल था। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये खूबसूरत सा सेगमेंट था, खूबसूरत सा प्रोग्राम आप देख रहे थे और काफ़ी इल्म दीन इसमें हासिल करने को मिला। अगली बार एक नए मेहमान के साथ, नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे प्रोग्राम का भी इंतज़ार रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखिए। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये एक्टिविटी हम घर पे भी बना सकते हैं और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर खेल सकते हैं। जी, इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं वीडियो रिव्यू की तरफ। जी फिजान भाई, आप इस हफ्ते क्या लाए हैं? कोई पोयम, गुलाम रसूल या साद और सादिया का कोई एपिसोड? जी, मैं आपके और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए गुलाम रसूल का एपिसोड लाया हूँ, जिसका उन्वान है बबलू की वायरल वीडियो। आइए देखते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। वो देखें, बबलू भाई क्या कर रहे हैं? जल्दी से कैमरा निकाले, इनकी वीडियो बनाते हैं। अब आएगा मजा। ये हैं बबलू भाई, जो इस वक्त मार्टो में चोरी का सैंडविच खा रहे हैं। ये क्या कर दिया बबलू भाई आपने? मैं भी सब दोस्तों को भेजता हूँ। आखिर मामला क्या है? अब आएगा मजा, अब देखो। वैसे क्या जबरदस्त वीडियो बनाई है।
अफसोस, बबलू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब मैं तुम्हें बबलू के साथ नहीं देखूं। फैजान भाई, मुझसे बात नहीं करें। ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने किया क्या है? क्या बात है, बबलू भाई दिखाई नहीं दे रहे? उन्होंने काम ही ऐसा किया है, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मार्ट से सैंडविच चुरा कर खा रहे थे। समझ नहीं आया मामला क्या है। बबलू भाई से ऐसी हरकत की उम्मीद तो नहीं है। क्या आप सबने अपनी आंखों से देखा है? अपनी आंखों से क्या? बबलू भाई की वीडियो तो सोसाइटी के तमाम ही लोगों ने देखी है। क्या किसी ने बबलू भाई से पूछा कि क्या मामला है? पूछना क्या, वीडियो सबने देखी है। आप सबको बबलू भाई से पूछना चाहिए था। आप उनके दोस्त हैं, उनकी आदत को जानते हैं। वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि असल बात कुछ और ही होगी। तो फिर हमें बबलू भाई के पास जाना चाहिए। बबलू भाई, मामला क्या था? गुलाम रसूल भाई, आपका शुक्रिया, आपने मुझसे पूछा, वरना मेरे दोस्त तो मुझसे नाराज ही हो गए थे। मामला ये था कि इसको घर जाकर खाना। बस यहाँ से काट कर वायरल कर दो। मैं बाबा से आग बचा कर खा रहा था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने वीडियो बना ली और इस वीडियो को एडिट करके ये क्लिप वायरल कर दिया। आपने अपने दोस्त को तन्हा कर दिया। आपको बबलू भाई से मुताल्लिक अच्छा गुमान रखना चाहिए था। दोस्तों, मुसलमान को यही हुक्म है कि मुसलमान के साथ नेक गुमान रखे, बदगुमान नहीं हो। मुझे तो ये क्लिप फैजान भाई ने भेजा था। फैजान भाई, क्या आपने अल्लाह पाक का ये फरमान नहीं सुना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू औ तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को अनजाने में तकलीफ ना दे बैठो कि फिर अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। इस तरह की कोई पोस्ट वीडियो शेयर नहीं करना चाहिए, और बिलफर्ज अगर ये वीडियो सच्ची भी होती तब भी किसी मुसलमान का पर्दा नहीं रखना चाहिए था। जी गुलाम रसूल भाई, ये तो मुझसे गलती हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बबलू भाई, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके। गुलाम रसूल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में नेक गुमान किया और मेरे दोस्तों से मुझे मिला दिया। आपने ये वीडियो क्लिप एडिट करके क्यों वायरल किया? हम तो सिर्फ तफरी करना चाहते थे। क्या दूसरों को तकलीफ देना तफरी कहलाता है? ये तो टैलेंट था हमारे दोस्त का। क्या दूसरों को अजियत देना, तकलीफ पहुंचाना, किसी की नेक नामी को नुकसान पहुंचाना, किसी की अच्छी शोहरत को खराब करना, किसी को बदनाम करना, क्या ये टैलेंट कहलाता है? हमें माफ कर दें, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। माफी तो आपको बबलू भाई से मांगनी चाहिए, लेकिन ये बताइए, सोसाइटी में उनकी जो बदनामी हुई, उनकी शोहरत को जो नुकसान पहुंचा, वो कैसे पूरा होगा? हम असल वीडियो एडिट करके दोबारा चलाएंगे और साथ माफी भी मांगेंगे कि हमसे गलती हुई। दोस्तों, किसी भी वीडियो को बगैर तहकीक के शेयर नहीं कीजिए और ना ही किसी के ऐप सोशल मीडिया पर बयान कीजिए, और झूठी वीडियो डालना तो सख्त गुनाह की बात और जुल्म है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बबलू की वायरल वीडियो एपिसोड देखी, जिसमें हमें मालूम हुआ कि एक दूसरे के लिए बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, और जब तक किसी बात का यकीन न हो उसको दूसरों तक नहीं फैलाना चाहिए। जी बिल्कुल, आज के लिए था वीडियो रिव्यू। इंशाल्लाह फिर किसी एपिसोड में आपके लिए नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। इसके साथ ही हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं शरारत भरा पैकेज, जिसे देखकर आप एंजॉय भी करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो आइए मिलकर देखते हैं। बच्चों का खबरनामा, 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 बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। और भाई पढ़ाकू साहब क्या पढ़ रहे हैं, जरा हमें भी तो दिखाएं। दे मुझे मेरी कॉपी दे, मुझे तंग मत अरे रुके तो सही, हमें भी तो देखने दें क्या पढ़ रहे हैं। मेरी कॉपी मुझे चाहिए, ले लें, ले लें, ले लें, ले लें, ये लें, ले लें, ले लें, ये लें, ले लें, ले लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या हो रहा है? ज़ोहैब भाई, मुझे मेरी कॉपी नहीं दे दे। ये तो बहुत ही बुरी बात है। ज़ोहैब भाई, आप इन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? डिस्टर्ब मतलब
दूसरों को काम के दौरान तंग करना, उन्हें परेशान करना, जिसकी वजह से वो अपना काम ना कर सके। जैसे आप मुहिब भाई को पढ़ाई के दौरान तंग कर रहे थे, ये मतलब है डिस्टर्ब करने का। हम तो बस खेल रहे थे। नहीं जोहेब भाई, अच्छे बच्चे हर काम वक्त पर करते हैं। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और खेल के वक्त खेल। और हाँ, अच्छे बच्चे दूसरों को डिस्टर्ब भी नहीं करते। मैं भी अच्छा बच्चा बनूंगा, आइंदा किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा और पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करूंगा। माशा अल्लाह। अब कॉपी इन्हें वापस दे दें। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा खाका था। अब वक्त हुआ है एक और खाके का, जिसका नाम है नन्हे उस्ताद। बच्चों का खबरनामा, 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 बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको मालूम नहीं कल क्लास में मैथ का टेस्ट है? नो प्रॉब्लम, सुबह की तैयारी कर लेंगे। बेहतर यही है कि आप आज के काम को कल पर मत टालें। अरे कल का काम कल देखा जाएगा। चलो अच्छा, मैं ट्यूशन जाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। कौन सी बात? मैं मैथ के टेस्ट में फेल हो गई हूँ। उबैद भाई, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वक्त की अहमियत को समझें। कल अगर आप मेहनत कर लेते तो आज टेस्ट में कामयाब हो जाते। अच्छे और कामयाब बच्चे आज का काम कल पर नहीं डालते। अच्छे स्मार्ट बच्चे पहले से ही अपनी तैयारी मुकम्मल रखते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। चले, हम दिल छोटा मत करें, आइंदा ख्याल रखिएगा, ठीक है? जी ठीक है सैन भाई। आए चलते हैं। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। और अब सबसे आखिर में वक्त हुआ है हमारी सबसे आखिरी रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। इस्लामी साल के 11वें महीने ज़िकादा शरीफ में भी आरास का सिलसिला होता है। और आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में सुनेंगे वो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु हैं। सबसे पहले आप रदियल्लाहु अन्हु के हुलिया मुबारक के बारे में बताता चलूं कि हज़रत साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु की हाइट लंबी थी। गोरे और गुलाबी रंग के खूबसूरत चेहरे पर दाढ़ी ने और भी दिलकशी पैदा की हुई थी। आप रदियल्लाहु अन्हु मुबल्लिग़े इस्लाम हज़रत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु की नेकी की दावत पर कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। आप रदियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने की वजह से आप रदियल्लाहु अन्हु के पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप रदियल्लाहु अन्हु बहुत बहादुर थे। ग़ज़वा बदर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबान, यानी वो जगह जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन से हिफाजत के लिए बनाई थी, हज़रत साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु उस पर पहरा देते थे। ग़ज़वा खंदक में आप रदियल्लाहु अन्हु जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से आप रदियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई, जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक का अर्श साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु की वफात पर खुशी से झूम रहा है। एक और हदीस पाक में है 70,000 फरिश्ते हजरत साद रदियल्लाहु अन्हु के जनाजे में शरीक हुए। एक हदीस पाक में है हजरत साद रदियल्लाहु अन्हु की आमद पर आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। आप रदियल्लाहु अन्हु ने 37 साल की उम्र पाई। आप रदियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक जन्नतुल बकी शरीफ में है। अल्लाह पाक की आप रदियल्लाहु अन्हु पर करोड़ों रहमतें हो और आपके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, 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 बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया